spontaneous process. So first of all, we'll try to understand what is a spontaneous process. So what is a spontaneous process? Who will tell me? जिसका del G नेगेटिव होता है. Del G is negative, so process will be called spontaneous. If del G is positive, then process will be called non-spontaneous. Simple as that. But can we, sir, make a non-spontaneous process possible? Can we make it possible for a non-spontaneous process to happen? Right? Can we do that? Yes, sir. Okay. How can we do that? External agent की help से. Yes, by providing some external agent or some additional energy which can compensate the del G value to a negative one. Because we already know that del G is equal to del H minus T del S. So we can make some changes. Maybe we can increase the del S or maybe we can increase the temperature so that the process becomes spontaneous. Right? So based on this spontaneity of the process, the electrochemical cells are as you know that electrochemistry is based on electron and chemistry. So exchange of electrons, although everywhere where there is a chemical reaction, there will be exchange of electrons. But in this scenario, the exchange of electron produces some electricity, and that electricity which we deal with is part of electrochemistry, which we'll be studying in this chapter. Now, based on these two phenomena, one is spontaneous and other one is non-spontaneous, we can classify electrochemistry in two categories. The first one is when we studied, although अपने पास बहुत सारी चीजें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने के लिए, ऐसे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो कैटेगरी में नहीं कर रहा हूँ. बट अगर आपने 10th में याद हो तो आपने एक पढ़ा था डैनियल सेल. पढ़ा है आपने? Yes, sir. तो सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक सेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एंड दूसरी होती है एक सेकंड. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग. पहले मैं समझाता हूँ आपको इसको यहाँ पे. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे सर? पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में. जो सेल्स होती हैं सर वो दो तरह की होंगी. इलेक्ट्रोलाइटिक एंड electrochemical cells can be classified into two categories: electrolytic cell and galvanic cell. Electrolytic cell and galvanic cell. Electrolytic cells का मतलब ये है कि ये this makes process for a non-spontaneous process. And this one is for spontaneous process. मतलब ये कि sir the galvanic cell is the one which uses chemical energy to convert it into electrical energy, because in that case only the process will be spontaneous. Or we can say that if a process is spontaneous, there will be some exchange of electrons. If we are talking in the sense of a galvanic cell or a chemical cell. So if there will be some exchange of electrons, that exchange of electron, if we connect that exchange of electron with an external source, there will be flow of electricity through that external source. And that's the cell which produces or which converts chemical energy into electrical energy. So the function of a galvanic cell is to convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो आपने अभी तक पढ़ा है 10th क्लास में, ऐसे पढ़ा होगा. दो रॉड होती है, कैथोड होता है, एनोड होता है, ये वो 10 तरह की चीजें आपने पढ़ी. तो अपन एक तरह के एक एक करके डिस्कस करेंगे चीजों को कि सर अगर हमने ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है, मतलब अगर हमने कुछ एक्सटर्नल एजेंट नहीं यूज किया, डायरेक्टली इससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और अगर मान लो सर इसको हमने उल्टा कर दिया, मान लो कि हमने बैटरी को, क्योंकि
क्यों ऐसा होगा, अपने आप क्यों होगा? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये काम होना फिजिबल है। कैसे फिजिबल है ये भी हम डिसाइड करेंगे, टेंशन मत लो, इस चैप्टर में सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। ये फिजिबल है तो क्यों है, फिजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल which will discuss अंदर की, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मींस a cell in which we use electrical energy convert it into chemical energy। मतलब ये कि इलेक्ट्रोलिसिस करके कुछ हम अचीव कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो मैंने इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कि अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, होना ही पड़ेगा। तो वैसा ही है, जिस सेल का काम है ये उल्टा करती है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना आसान है, इसको याद रखना। बताइए, इसको फटाफट नोट करो, फिर अपन मूव करते हैं गैल्वेनिक सेल को पढ़ते हैं अच्छे से। कर ले तो बता दो मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर और सबने? यस सर। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं वन बाय। एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है, उसका जनरल स्ट्रक्चर में अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, बहुत आसान सी चीज है ये, कि सर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो ऐसा होगा कुछ तरह से कि दो पार्ट होते हैं ऑब्वियसली, कैथोड और एनोड, आपको पता है। कैथोड का सॉल्यूशन अलग होता है और एनोड का सॉल्यूशन अलग होता है, तो ऑब्वियसली उनका कंटेनर भी अलग अलग। अब आप समझ रहे हो, जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, एक ही कंटेनर के अंदर दोनों पढ़ा होगा, और आपने बोला होगा कि यहाँ CuSO4 यूज करते हैं या ZnSO4 यूज करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना एक ही कंटेनर में दोनों को यूज कर पाना। है क्या, बताओ? इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू हैव टू डिफरेंट कंटेनर्स फॉर देम। एनीवेज, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्या होगी कि हम इसमें ऐड करेंगे रॉड्स जो अपनी होती है यूज की, जो अपने इसमें यूज आती है। जैसे मान लो तुम्हें जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो है इसका, वो है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल के में क्या होता है, कॉपर और जिंक की रॉड यूज होती है, ठीक है। तो यही एग्जांपल कॉमन है, हर जगह यही एग्जांपल यूज होता है कि सर डैनियल सेल जो होता है उसमें यहाँ पे चलो मान लो हमने यूज किया, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, कॉपर जिंक कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं मुझे यही यूज करना है इसको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कॉपर की प्लेट या जिंक की प्लेट मैंने यहाँ पे यूज करी गई, ठीक है, दूसरी प्लेट मुझे इधर यूज करनी पड़ेगी किसी दूसरे मेटल की। ठीक है, दूसरी प्लेट मुझे यहाँ यूज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसके बाद सर क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं सर, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग इस सेल को ढंग से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल है ये, इसको ढंग से समझेंगे, इसके एस्पेक्ट को समझेंगे, नहीं तो ये चीजें मजा नहीं आएगा इसमें। जहां भी डाउट हो पूछोगे, तभी मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा उसको। और कुछ कुछ नई नई चीजें भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, तो उसमें भी ध्यान देना है आपको, जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। आज की क्लास पूरी की पूरी इसी डिस्कशन में जाएगी कि क्या है ये सेल, क्या है। मतलब ये ट्यूब होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा कर्वेचर इसका ऐसा ही हो, बट इस तरह से, मतलब ये ट्यूब है ये। अरे सॉल्ट ब्रिज नहीं है? हाँ भाई, ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्यूशन डिप कर रखा है, इसको ध्यान रखना कि सॉल्ट ब्रिज भी सॉल्यूशन के अंदर डिप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको स्टेट किया, ठीक है। अब देखो क्या हो, चलो कुछ भी मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला जो है वो कॉपर है, रेड वाला जो है वो जिंक, ठीक है। अब तुमको पता है कि सर रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, and that's based on a fact that oxidation potential of zinc is more than oxidation potential of copper. So in order to get zinc is more, has more tendency to get
oxidized, right? It has more tendency to lose its electrons, so it has more tendency to reduce some other element. ये आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में हो, तो और मैंने तुमको जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीजें बताई हुई है, सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी बताया हुआ, इसलिए मैंने बोला था पढ़ के। अब चलो कि इसको देखते हैं हम लोग कि सर आपने इसको कनेक्ट कर दिया और इसको अगर हम यूज करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आप बताओ कि जिंक जो होगा वो बिहेव करता है एनोड की तरह से, आपने पढ़ा होगा राइट, बिकॉज इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह की सेल जो हमने बनाई है उसमें एनोड और कैथोड पे चार्जेस क्या हो, बताइए। कौन बताएगा? जिंक पे पॉजिटिव है, कॉपर पे नेगेटिव। जिंक पे पॉजिटिव है और कॉपर पे नेगेटिव है, ऐसा क्यों? अब अपन इसको क्या करते हैं कि इसको ना अपन रिमूव करते हैं, जिंक कॉपर हटा देते हैं, अपन रखते हैं एनोड कैथोड बस। जिंक कॉपर तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, हम कोई भी जनरल गैल्वेनिक सेल डिस्कस करें, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में अगर हम एनोड की बात करें तो आपने को ये तो पता होगा कि एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, क्या ये बात पता है आपको? यस सर। अगर ये आपको पता है तो आपको पता है कि चलो एनोड है, चलो एनोड को मैं मान लेता हूँ कुछ भी एलिमेंट एक्स, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट एक्स है और ये एलिमेंट वाई, ठीक है। एक्स का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एक्स क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एक्स पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लेते हैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मान लो कि कुछ भी पॉजिटिव चार्ज दिखा यार, +1 ही दिखा, प्लस, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक्स जो है वो मोनो वैल्यू, समझने के लिए आप इसको +10 दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, हालांकि +10 कुछ होगा नहीं, बट द प्रैक्टिकली +2 +3 कुछ भी दिखा सकते हो, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अ जनरल केस। नाउ अब सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एनोड है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब आगे बढ़ते हैं। एट कैथोड, पैरेलली इधर में डिस्कस करते हैं, एट कैथोड, रिएक्शन होगा यहाँ पे, रिएक्शन होगा अगर सर, तो Y जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मे बी वाई ऑलरेडी किसी प्लस स्टेट में हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, दैट वी कैन बैलेंस कि हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स विल बी नीडेड इन ऑर्डर टू चेंज दी, अगर चार्ज इसका अलग है, मान लो जैसे इसमें +2 चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके फिर 2 मोल चाहिए, तो दैट बैलेंसिंग इज नॉट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस पर आप फोकस मत करना है। तो ये अपना सर रिड्यूस हो जाएगा, वाई प्लस में होगा तो रिड्यूस होकर कुछ बना लेगा अपना वाई। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि हमने इसमें वाई क्या कोई सॉल्ट यूज किया, सॉल्ट ऑफ सॉरी एक्स यूज किया है एज इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी चीजें हैं समझने को इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज किया हमने ये है सॉल्ट ऑफ वाई एज इलेक्ट्रोलाइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही किया जाता है, जैसे यहाँ पे Cu है तो CuSO4, यहाँ पे होगा Zn है तो ZnSO4 यूज करते हैं, किसी कोई उसी का ही सॉल्ट यूज करते हैं, ये बात क्लियर है। अब देखो क्या हो, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ बैटरी का सिंबल बनाऊं तो किधर बड़ा वाला वो रखूं और किधर छोटा वाला रखूं, बताओ किधर रखेंगे पर पॉजिटिव वाला? सर एनोड की तरफ, हाँ सर लेफ्ट एनोड। एनोड पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, और इस बात को मैंने पहले भी समझाया है कि एनोड इन दिस सिनेरियो इज गोइंग टू गेट नेगेटिव चार्ज, एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज and cathode will be positively charged,
इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे वो कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे वो एनोड। Now we'll try to understand why this happens. See, if anode gets oxidized, it is losing an electron, and cathode gains that electron. So what is happening here is electron is moving from anode to cathode. The electron which this anode has lost is moving from, जैसे कि मान लो X है, तो X ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, X प्लस बना, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन ही तो इस प्लेट के थ्रू इधर से पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म। तो क्या होगा, देखो सर ये होगा यहाँ पे कि ये Y प्लस तो ठीक है सॉल्ट के साथ, सॉल्यूशन में सॉल्ट है तो उसके साथ कंबाइन कर लेगा, आनायन बन जाएगा, Y प्लस तो सॉल्यूशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ कि Y प्लस कोई मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Y प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Y मेटल बना दिया। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो तुमको नहीं लगता कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डिसिपेट हो रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। बताओ, नहीं समझ यार, हाँ या ना बोल दिया करो यार। फिर से थोड़ा सा समझा दो। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से जा रहा है, तुम मुझे बताओ कि एक नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बैटरी में तो इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं ना यार। यस सो इफ इलेक्ट्रॉन is being formed at anode and it is moving from anode to cathode, isn't it sure that electron जहां से स्टार्ट कर रहा है मूव करना वो टर्मिनल नेगेटिव है, कि दूसरा पॉजिटिव है, तभी तो दूसरी डायरेक्शन में जा पा रहा है, दूसरी जगह Yes. पोटेंशियल है। यस बताइए गुरनूर। सर जो रिडक्शन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना? बिल्कुल, ठीक है सर, बस यही कंफ्यूज हो गया था उसमें अभी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिखाया है, वाई ने इलेक्ट्रॉन लिया और वाई बन गया। यस सर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियोजर मैंने बताया भी है तुम लोग, LEOSER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो देखो एक बात तो सर्टेन है, अभी अब तो किसी को टर्मिनल वनमिनल में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, बोलो। तुम्हारे साथ और कौन कंफ्यूज था गुरनूर, बताओ। क्या सर? तुम्हारे साथ कोई और भी कंफ्यूज था, कौन है वो? सर मैं भी सर, बस हो गया क्लियर। तो देखो तुमको करना क्या है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखो, तुमको पता है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, वो भी आएगा। But that's not in the scene of galvanic cell, it is in case of electrolysis, electrolytic cell। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है तुमने वहां पे, इसलिए तुमने एनोड को पॉजिटिव मार्क किया और कैथोड को नेगेटिव, बिकॉज़ दैट इज एन ऑपोजिट प्रोसेस। तो अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स। बाय डिफॉल्ट बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो किसमें होता है? बैटरी में होता है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ध्यान रखना, दैट इज, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दैट इज कैथोड। और अगर भरोसा नहीं है तो तुम अपना पेंसिल सेल निकालना, जो पेंसिल सेल और उसमें देखना जो बाहरी लेयर होती है वो जिंक की होती है। जो बैटरी होती है ना छोटा सा, जो घर में यूज करते हैं, AA, AAA, उससे बड़ा पहले आता था निप्पो का ए साइज, याद है कभी यूज किया है? वो रिमोट में डलती है बैटरी। हाँ भाई, तो उसका बाहरी लेयर जो अभी के टाइम में थोड़ा चीज, बाहरी लेयर उसका जिंक का होता है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजीली, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। द पॉइंट इज जिंक नेगेटिव होता है, क्योंकि बाहरी लेयर तुमने ध्यान दिया होगा बैटरी के, अगर चेक करोगे तुम तो बाहरी लेयर जो होती है, जो जो फ्लैट पोर्शन होता है वो होता है नेगेटिव, और जो एक पॉइंटेड पोर्शन होता है वो होता है पॉजिटिव। याद है, देखा है तुमने कभी बैटरी?
यार तुम लोग घर पे चीजें नोटिस नहीं करते, कैसे तुमने साइंस लिया क्यों तुम लोग, ये बताओ। सर वो पॉइंटेड वाली तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव। हाँ ना बोलो तब तुम्हें समझ में आएगा, तुमने नोटिस किया भी है इसे। Anyway, बहुत छोटी छोटी चीजें यार, इसके लिए नोटिस करने की जरूरत नहीं है, तो दिखते दिखते पता चल जाता है। इतनी बार बैटरी खरीदते हो वहां पे लिखा होता है क्लियरली पॉजिटिव नेगेटिव, यू शुड नो दैट। एनीवेज, सो यहाँ तक जो चीजें हैं उसमें ये समझ में आता है सर कि ये जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। कब? जब सेल एक गैल्वेनिक सेल है। कब? जब सेल का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तब। ठीक है, यहीं पे अटके नहीं रहना, अपने को आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक ठीक है, तो बताइए यहाँ तक ही मैं आगे वाला स्टेप बताऊंगा। अब देखो क्या, अब इसका क्या काम है सर, ये सॉल्यूशन क्या करता है? सॉल्यूशन ऑब्वियसली फैसिलिटेट करता है प्रोसेस के स्मूथनेस को। जैसे चार्ज यहाँ पे आया तो उसको कंपनसेट करना भी तो जरूरी है। जैसे यहाँ से चार्ज कम पड़ गया, वाई प्लस जो हो गया कंज्यूम हो गया, तो उस चार्ज को कहीं ना कहीं से वापस लाना है ना सॉल्यूशन में। तो वो यहाँ ये जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका काम होगा टू सप्लाई चार्ज एंड फैसिलिटेट दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द सेल। क्योंकि ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, फिजिक्स आपको आती है, आई होप कि आपको आती है, तो आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है कि अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको एक क्लोज सर्किट चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ से करंट फ्लो करवा दिया होगा, ये अगर नहीं होता ये काम नहीं होता। ठीक है, दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड क्या, समझते हैं? ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर किरचॉफ लॉ, इतना तो हमने पढ़ा ही है। पता है ना तुमने, नहीं पढ़ा है? ठीक है, डायग्राम अच्छे से बना। सौरव के अलावा बाकी कोई भी बोल सकता है, सौरव की तो आवाज ही नहीं पहुंचती है। इसका नाम है सॉल्ट। अब अब हम लोग वन बाय वन सबका फंक्शन डिस्कस करेंगे, किसका क्या रिलेशन। ऑब्वियसली एनोड का फंक्शन है ऑक्सीडाइज हो जाना, कैथोड का फंक्शन है रिड्यूस हो जाना। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट ऑल function of an electrolyte. Now my question is, why don't we use some other electrolyte? Why is it compulsory to use electrolyte which is of same metal or a salt of same metal? Why do we need to do that? जैसे कि मान लो मैं जेडएनएसओ का जिंक वाले साइड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज कर दूंगा तो क्या दिक्कत है? या कॉपर वाले में जेडएनएसओ4 या एफईएसओ4 कुछ थर्ड थर्ड मेटल का यूज कर दूंगा मैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ही है। Is it compulsory? First, पहला क्वेश्चन तो ये कि is it compulsory to use the same salt, or we just use just like that because it will be simpler to remember? Uh, अरे यार कुछ तो बोलो। हाँ ना, कुछ नहीं, सो रहे हो कि? चलो वीडियो ऑन करो सब लोग, चलो वीडियो ऑन करो फटाफट। मतलब जो बेसिक रीजन मैं तुमको समझा सकता हूँ कि वो ये है, इस तरीके से ऐसा ही है। क्लियर है? तो इसके बारे में सोचना, और भी तुम अपना दिमाग चलाओ थोड़ा और सोचो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सी आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस सेल इन रिडॉक्स रिएक्शंस। खास करके जेम्स वालों को भी बताया, दोनों को बताया इनफैक्ट मैं, मुझे याद है क्लियर। तो आप पढ़ोगे ना, अगर रिडॉक्स पढ़ के आए होगे घर से, तो तुमको ध्यान होगा कहीं ना कहीं मैंने गैल्वेनिक सेल, सॉल्ट ब्रिज, ये सारी बातें करी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अगर पढ़ के आओगे घर से तो डेफिनेटली याद आएगा। एनीवे, तो ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे ये सब, ताकि नेक्स्ट स्टेप समझ सके हम लोग। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह नहीं मिलता है ये, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है मैंने बताया हुआ, तो अगर आपको किसी को याद आ रहा है तो बताओ मुझे कि सॉल्ट ब्रिज का क्या है। सर्किट कंप्लीट करना, फ्लो ऑफ आयंस उससे होता है। सॉल्ट ब्रिज का सर फंक्शन सबसे पहला तो ये, टू कंप्लीट द सर्किट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ अगर क्लोज लूप नहीं बनता है तो जो अपना कंपाउंड है वो रिएक्ट नहीं करेगा, या उसके रिएक्ट करने का कोई रिजल्ट नहीं बनता।
राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है टू कंप्लीट दिस, दूसरा पॉइंट है to facilitate the flow of ions from one part of the cell to other part of the cell. To facilitate the flow of ions. देखो क्या है, मैं समझाता हूँ इसको, समझो। अगर मान लो सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अगर इधर से करंट आ रहा है तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दूसरे पार्ट में जा रहा होगा ना। अब दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, मतलब वहां तो सॉल्ट्स है। तो क्या होता है, एक्चुअली आयंस का एक्सचेंज होना शुरू होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गया, कॉपर ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है। तो यहाँ से आयन का फ्लो होगा, जो आयन में सिमेट्री खत्म होगा। देखो क्या होगा, जैसे समझते हैं इसको, इसको ध्यान से समझो इस चीज को। मैं सब कुछ लिखवा नहीं सकता बट समझा जरूर सकता हूँ। अगर यहाँ पे चलो मान लो 100 वाई प्लस आयन थे और यहाँ पे 0 एक्स प्लस आयन थे, ठीक है। 100 वाई प्लस आयन थे पहले से, कॉपर प्लस, और यहाँ पे कुछ एक्स प्लस भी थे। अब x ने जब इलेक्ट्रॉन लुआ तो यू लूज किया तो एक और x प्लस बन गया। मान लो दोनों 100 थे पहले, अब तो ये एक और x प्लस बन गया, मतलब 101 x प्लस हो गए। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया उससे क्या हो गया कि एक y प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो y प्लस सिर्फ 99 ही बचे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये x प्लस जो आप देख रहे हो वो इस सॉल्ट का पार्ट, जो पहले से 100 थे, मतलब जैसे ZnSO4 आपने यूज किया तो कुछ Zn प्लस आयन होंगे, Zn2 प्लस, तो वो है 100 मैंने मान लिया। और यहाँ पे मान लिया कॉपर 2 प्लस आयन भी 100, ठीक है। अब जब Zn ने एक बार और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक और Zn2 प्लस आयन बना। जिंक ने जब ऑक्सीडाइज हुआ जिंक तो एक और Zn2 प्लस आयन बन गया। या अपने केस में अगर हमने x अज्यूम किया तो x जब ऑक्सीडाइज होगा तो एक और x प्लस आयन बन जाएगा, सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये x प्लस आयन एक्स्ट्रा हो गया, पहले से 100 थे, एक और बन गया 101 हो गया, तो ये 101। नाउ as this flow of electron takes place, you already know that this y plus is going to get one electron and get converted into neutral y. या आपने पढ़ा है, या फिर copper 2 plus will get 2 electrons from zinc 2 plus and will get converted into copper, simple copper. So this is going to become y. So now we have shortage of one y. Now there is difference of two charges, two ions between this electrolyte and the other electrolyte. तो यहाँ पे जो अनबैलेंसिंग है उसको कंप्लीट करता है कौन सा, ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इसमें भी ये भी एक सॉल्ट ही होता है। तो इसका जो अनायनिक पार्ट है, ध्यान से देखो, और इसका जो कटायनिक पार्ट, इधर कमी किसकी है, कटायन, और उधर अनायन, या कह सकते हो उधर कटायन ज्यादा है। तो ये अनायनिक पार्ट क्या करता है, उधर से कटायन को अट्रैक्ट करता है, इधर से अनायनिक पार्ट जो होगा सॉल्ट ब्रिज का वो इधर से कटायन को अट्रैक्ट करेगा, और जो इसका कटायनिक पार्ट है सॉल्ट ब्रिज का वो इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। जो इधर पॉजिटिव चार्ज की कमी थी वो फुलफिल होगी, और जो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था वो डिक्रीज भी होगी। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना। आगे समझ सर। it it is basically used for flow of ions from one part of cell to other part of cell to keep or to neutralize the difference of charges, because नहीं तो फिर internal potential difference जनरेट हो जाएगा, इंटरनली सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। उसका भी नाम है, क्या बोलते हैं उसको, वही तो पोटेंशियल बोलते हैं यार, उसका नाम है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सेल के अंदर इंटरनली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट होने लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज घटते जा रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ये ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सेल में इधर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा तो धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल में पोटेंशियल जनरेट होने लगेगी, जो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ ये ध्यान आया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो क्या होगा कि सेल कह रही है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जाए, ये कह रहा है कि नहीं इधर से जाए, तो इससे क्या होगा कि अपोज होने लगेगा प्रोसेस का, तो प्रोसेस हो जाएगा स्लो। तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट। खैर एक एक करके लिखेंगे, चीजों को मैंने समझा दिया तो अब लिखो फटाफट। पहली चीज लिख लिया आपने, टू कंप्लीट द सर्किट। दूसरा, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ आयंस, देखो नोट करो, to maintain the flow of ions from one part of circuit to other part of circuit. ठीक है, थर्ड चीज लिखो आप, diminish the liquid junction potential.
diminish the liquid junction density. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को तो कभी खराब क्या सेल तो कभी खराब ही तब धीरज रखो, खराब भी होगी सर। जिंक धीरे धीरे कोरोड हो रहा हो, नहीं दिख रहा? जिंक कंज्यूम तो हो ही रहा है धीरे धीरे, होगा वो। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सेल नहीं होती जो खराब होती, डिस्चार्ज होती है, खराब भी होती है सर। और ऐसा नहीं कि जो थ्योरेटिकली तुम देख रहे हो एकदम आइडियली वही होता है एकदम 100% साथ जाता है। प्रैक्टिकली देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। मान लो सॉल्ट ब्रिज के बीच में वॉइड आ गया, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। एनीवेज, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो मैं लिख पा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है कि सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज, तो आप कैसे सोचोगे? तो देखो, सॉल्ट ब्रिज की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, a salt bridge is made up of ions, or obviously ions से ही बनता है salt, of similar sizes. It's very important to remember that a salt bridge is made up of ions of similar sizes or same sizes if possible. जितना साइज उनका कंपेरेबल हो दोनों आयंस का, उतनी ही बेटर बात होगी अपने लिए। तो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ एक बार को, और ताकि मैं अपन सॉल्ट ब्रिज के बारे में और डिस्कस करें यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, वो क्या है? It is made up of ions of similar sizes. Similar sizes. जैसे कि मान लो सबसे कॉमन जो सॉल्ट ब्रिज में यूज होता है वो होता है KCl। सबसे कॉमनली जो सॉल्ट यूज होता है सॉल्ट ब्रिज में होता है KCl, क्योंकि K+ और Cl- की साइज कंपेरेबल होगी। कैसे कंपेरेबल होगी, बहुत डिस्कस किया periodic क्लासिफिकेशन में, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो K+ और Cl- की साइज अगर कंपेरेबल होगी तो दिस सॉल्ट ब्रिज कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज ऑफ विद आयंस ऑफ सिमिलर साइजेस? आयंस की ये बात हो रही है, आयंस की, आयंस का सिमिलर साइज मतलब जैसे K+ और Cl- की सेम साइज की। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई डू वी नीड टू यूज अ सॉल्ट इन द सॉल्ट ब्रिज which has same size of cations and anions? एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, एक क्वेश्चन का भी आंसर, तुम बस इंतजार करते हो कि सर थोड़ी देर चुप रहेंगे तो सर को तो बोलना ही है, तो बोल ही देंगे। यू नीड टू रीड बिफोर कमिंग टू क्लास। आई नो यू हैवंट डन दैट, मैंने बोला भी था पढ़ के, और मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई है 11th क्लास में, सब कुछ बताया हुआ, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी बताया हुआ, अगर तुम ध्यान से देखोगे जाकर। The reason behind this is, see, if there is a flow of ions from both the sides or to both the sides, so we can easily see that on the left hand side or on the anode part, anions are flowing towards the anode, and on the cathode part, cations are flowing through the anode. मतलब अगर KCl यहाँ पे यूज करते हो तो K+ आता कैथोड वाली साइड में और Cl- आता एनोड वाली साइड में। क्यों? क्योंकि एनोड वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और कैथोड वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। कैथोड वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है और एनोड वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज घटाना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो K+ जो है वो जाएगा इधर और Cl- जाएगा उधर। अगर मान लो दोनों की साइज में हुआ डिफरेंस, अगर मान लो कि दोनों की साइज में हुआ डिफरेंस, मान लो कि जो कटायन है वो बड़ा है, बड़ा है तो वो आराम से जाएगा। There is a term called ionic mobility. There is a term which is called ionic mobility. तो जो बड़ा है वो आराम से चलेगा, अपना घूमता रहेगा धीरे धीरे, जो छोटा है वो फास्ट चला जाएगा। तो फिर डिफरेंस आने लगा ना कि एनोड वाला पार्ट जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैथोड वाला हो ही नहीं रहा है, स्लो हो रहा है। So that will again create a difference between the potential difference between the cell internally. Internal potential difference फिर से जनरेट होने लगेगा। So in order to maintain the neutrality with equal ratio, what we need is we need salts of equal ionic mobility.
And in order to have salts of equal ionic mobility, we need to have ions of equal sizes. तभी तो ionic mobility equal होगी, ये similar होगी एटलीस्ट, बहुत minute gap होगा। तो आप ध्यान से क्या लिखोगे आप इसमें कि due to लिखो आप due to similar sizes ions have similar ionic mobility. Due to similar sizes ions have similar ionic mobility. Which helps neutralize both part of cells which helps neutralize both part of cells equally. ठीक है सर, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर इक्वली एट सेम इंस्टेंट लिखो, सेम इंस्टेंट या there is very less lag between the realization of cationic and anionic part, बहुत कम लैग होगा। क्यों लैग होगा कम? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे पहुंच जाएंगे, ये इधर पहुंच जाएगा और दूसरा उधर पहुंच जाएगा सेम ही टाइम। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो ये होगा सर कि इधर वाला न्यूट्रलाइज होता जाएगा और उधर वाले में डिले क्रिएट होगा, तो फिर से वही गैप तो आ ही गया ना, कम आया बट गैप तो आ गया ना। हमारा पर्पस क्या है कि दोनों के बीच में चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन इक्वल हो ताकि करंट का फ्लो हमेशा स्मूथ रहे। बस बात इस बात को, अगर लेट होगा तो तुम सोचो कि इधर पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, मतलब कम है अभी भी, इधर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब एनोड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, कैथोड में अभी भी डेफिशिएंसी रह गई। मान लो कि K प्लस जो है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है Cl माइनस, तो Cl माइनस से पहुंच जाएगा पहले उधर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 की साइड में, या मतलब इस वाली साइड में Cl माइनस पहुंच जाएगा पहले, तो ये वाली साइड को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन ये वाली साइड तक K प्लस पहुंचा ही नहीं है। गैप आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे तुम हो और स्टूडेंट्स है, कश्मीर में भी स्टूडेंट्स है, तुम्हारे पास अच्छा इंटरनेट आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो मस्त, स्कूल्स तो हर जगह बंद है, लेकिन कश्मीर में इंटरनेट नहीं आ रहा है और उसकी किसी को टेंशन भी नहीं है, तो वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंच रही क्लासेस लेट, मे भी नहीं भी पहुंच रही है, इतना स्लो इंटरनेट आ रहा है कि डाउनलोड करके भी देखने में फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तुमको 2G इंटरनेट दिया जाए अभी के टाइम में और बोला जाए कि लो ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, इसी में नहीं हो पाता है, 4G चाहिए। तो उससे क्या हो, उससे there will be a gap between you and the student who is in same class, who has same potential or maybe better potential than you, is not able to study further because he doesn't have that facility. क्यों? क्योंकि वो लेट पहुंच रहा है, राइट? तो ये एक एग्जांपल हुआ कि होगा कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज चेंज हो रही है कि वो वहां से लेट पहुंच रहे, क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट इज नॉट एविडेंट but it will appear after 10 years, 20 years or 30 years of life, it will appear. सेम यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा गैप है कि अचानक से दिख जाएगा कि अरे यार ये 10 वोल्ट की बैटरी अचानक से 2 वोल्ट की होगी, ऐसा नहीं होगा, बट दैट विल डैमेज द सेल, दैट विल टेक टाइम, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो डैमेज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम लोगों को डिफरेंट साइज का भी यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन सिल्वर की सेल का अगर करा रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो सिल्वर का है, उस केस में हम KNO3 यूज करते हैं, ना कि KCl। KCl नहीं करते कब? when electrolysis or when क्या बोलेंगे, reaction of silver is involved in the galvanic cell, when reaction of silver ion is involved in galvanic cell, मतलब Ag plus are involved है, so we don't use KCl as salt base, KCl नहीं यूज होगा सॉल्ट बेस। इसका रीजन ये है, ये भी मैंने बताया, ये भी मैंने बताया हुआ तुमको। इसका रीजन ये है कि जब KCl को रिएक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली Ag प्लस की तरफ आएगा Cl माइनस और K प्लस जाएगा तुम्हारा दूसरी साइड में, क्योंकि तुम्हारा दूसरा पार्ट ऑफ सेल है, तो ये दोनों कंबाइन अगर कर जाए AgCl बन जाएगा।
इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। होगा क्या कि यहाँ सेल पे, यहाँ पे जैसे मान लो ये Ag है, ये क्या है Ag है, तो ये Ag प्लस बन जाएगा। अब Ag प्लस से जब Cl ये दिख भी रहा है तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे Ag प्लस बनाएगा ये, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो यहाँ Cl माइनस आएगा वो इस Ag के साथ अगर कंबाइन कर गया तो ये यही से टच करेगा ना Ag प्लस, ऐसा थोड़ी Cl माइनस नीचे जंप करेगा। Cl माइनस कोई आदमी तो है नहीं कि उधर सॉल्ट ब्रिज से आ रहा है और जंप कर जाएगा, तो इसलिए जंप में बना रहा है सॉल्ट और उससे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये ऊपर है तो आयंस फ्लो कर रहे हैं लिक्विड में, तो आयंस और यहाँ पे जैसे Ag प्लस आए Cl माइनस आएगा तो दोनों कंबाइन कर लेंगे, यही होता है। ऐसा होगा कि इसीलिए मैंने बोला कि ये जो लिक्विड होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऊपर तक होता है। ऐसा नहीं कि तुमने नीचे तक छोड़ दिया, उधर से आयन जंप करके नीचे सॉल्यूशन में कूद जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लगे। अब ये व्हाइट और प्रेसिपिटेट ये हो जाएगा सॉलिड। अब सॉलिड हो गया तो ब्लॉक कर दिया इसने, अब दूसरा आयन आ ही नहीं सकता इधर से, राइट। तो टू अवॉइड दैट, to avoid precipitation of AgCl, we use KNO3 because AgNO3 is not precipitate. AgNO3 is soluble. ठीक है, इसलिए हम लोग, हालांकि वहां पे फिर डिफरेंस आता है, बट अब कोई ऑप्शन ही नहीं, वहां पे डिफरेंस आएगा साइज का, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो कम से कम चलो स्लो काम करेगा तो सही। ठीक है, जैसे कि कश्मीर के बच्चे अब पढ़ते होंगे, जैसे भी जो भी ऑप्शन है वो उसी में कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ रहे होंगे, because they don't have any other option. That's all from my side for today. In next class we'll discuss जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पार्ट है इसका। एक तो तुमने गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, फिर तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, उसमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ये सब चीजें पढ़नी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बीच में आती है, ठीक है। 3 पार्ट में टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कल की क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ कैसे है। इसको पढ़ के आना, एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ना है, ये जो मैंने आज डिस्कस किया उसको एक मतलब स्टार्टिंग के 3 पेजेस ढंग से पढ़ लेना एनसीईआरटी के, है ना, ये क्वेश्चंस हो। और ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir.